اہم خبر دیں کہ آئی ایس پی آر نے عمران خان کے فیصل آباد میں بیان پر رد عمل دیا ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ عمران خان نے توہین آمیز اور غیر ضروری بیان دیا ہے۔ پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش افسوسناک ہے۔ پاک فوج نے عمران خان کے بیان پر شدید غم و غصہ ہے۔ اپڈیٹ دے رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں اہم خبر سے۔ آئی ایس پی آر نے عمران خان کے فیصل آباد میں بیان پر رد عمل دیا ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ عمران خان نے توہین آمیز اور غیر ضروری بیان دیا ہے۔ پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش افسوسناک ہے۔ پاک فوج میں عمران خان کے بیان پر شدید غم و غصہ ہے۔ اہم خبر دے رہے ہیں کہ آئی ایس پی آر نے عمران خان کے فیصل آباد میں بیان پر رد عمل دیا ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ عمران خان نے توہین آمیز اور غیر ضروری بیان دیا ہے۔ پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش افسوسناک ہے۔ پاک فوج میں عمران خان کے بیان پر شدید غم و غصہ ہے۔ عمران خان نے توہین آمیز اور غیر ضروری بیان دیا ہے، ایسا کہنا ہے آئی ایس پی آر کا۔ فوج کی قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ افسوسناک ہے، ایسا کہنا ہے آئی ایس پی آر کا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج میں عمران خان کے بیان پر شدید غم و غصہ ہے۔ پاک فوج قوم کی حفاظت کے لیے ہر روز جانیں قربان کر رہی ہے۔ آئی ایس پی آر کا عمران خان کے فیصل آباد میں بیان پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ آئی ایس پی آر نے عمران خان کے فیصل آباد میں بیان پر رد عمل دیا ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ عمران خان نے توہین آمیز اور غیر ضروری بیان دیا ہے۔ پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش افسوسناک ہے۔ پاک فوج میں عمران خان کے بیان پر شدید غم و غصہ ہے۔ اپڈیٹ دے رہے ہیں اس اہم خبر سے کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے۔ عمران خان کے فیصل آباد میں بیان پر رد عمل دیا ہے انہوں نے، اور آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ عمران خان نے توہین آمیز اور غیر ضروری بیان دیا ہے۔ پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش افسوسناک ہے۔ پاک فوج میں عمران خان کے بیان پر شدید غم و غصہ ہے۔ اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے تو نمائندے ریحان شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ریحان شیخ، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے چیئرمین پی ٹی آئی کا جو فیصلہ آباد جلسے میں پاک فوج کی سینئر قیادت پر احتقامیز انتہائی غیر ضروری بیان بازی تھی، اس پر آئی ایس پی آر نے جو ایک اظہار کیا ہے، اور پاکستان آرمی میں چیئرمین پی ٹی آئی کے جو بیان پر شدید غم و غصہ ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا نازک وقت میں پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے۔ پاک فوج قوم کی سیکورٹی اور حفاظت کے لیے ہر روز جانیں قربان کر رہی ہے۔ آرمی چیف کو تعیناتی کا آئین میں واضح طریقہ کار موجود ہے۔ تمام طریقہ کار کے باوجود سینئر سیاستدانوں کی عہدے کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے۔ کچھ دیر قبل آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی نے جو فیصلہ آباد جلسے میں پاک فوج کی سینئر قیادت سے متعلق جو انتہائی غیر ضروری بیان دیا تھا، اس پر ان کا ریئیکشن سامنے آیا ہے۔ جی ٹھیک ہے ریحان، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ اہم خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں ہیں کہ آئی ایس پی آر نے عمران خان کے فیصل آباد میں بیان پر رد عمل دیا ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ عمران خان نے توہین آمیز اور غیر ضروری بیان دیا ہے۔ پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش افسوسناک ہے۔ پاک فوج میں عمران خان کے بیان پر شدید غم و غصہ ہے۔ ایک بار پھر بات کریں گے اپنے نمائندے ریحان شیخ سے۔ جی ریحان شیخ، مزید کیا آئی ایس پی آر کے بیان میں سامنے آئی ہے بات، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے آئی ایس پی آر کی جانب سے جو مزید جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اس میں آئی ایس پی آر نے بڑا واضح یہ کہا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کی آئین میں واضح طریقہ کار کی موجودگی کے باوجود سینئر سیاستدانوں کی جانب سے اس عہدے کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے۔ پاک فوج کی سینئر لیڈرشپ کی اہلیت اور حب الوطنی ان کی دہائیوں پر محیط ہے۔ داغ اور شاندار عسکری ان کی جو خدمات ہیں وہ تمام لوگ اس سے عیاں ہیں۔ پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش اور آرمی چیف کی تعیناتی کے طریقہ کار کو متنازع بنانا نہ پاکستان کے مفاد میں ہے، نہ ہی پاک فوج کے مفاد میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان آرمی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی بالادستی کی عزم پر قائم ہے۔ اس سے قبل جو ہے گزشتہ روز چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے پاک فوج کی سینئر قیادت پر جو ہے احتقامیز اور انتہائی غیر ضروری بیان بازی کی تھی، جس پر آئی ایس پی آر نے اپنا ریئیکشن شو کیا ہے، اور کچھ دیر قبل انہوں نے ایک واضح طور پر یہ پیغام بھجوایا ہے جس میں آئی ایس پی آر کا کہنا تھا
पाकिस्तान आर्मी में चेयरमैन PTI के बयान पर शदीद गमो गुस्सा है। नाजुक वक्त में पाक फौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। इसके साथ साथ ISPR ने यह भी कहा कि पाक फौज कौम की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए हर रोज जानें कुर्बान कर रही है। इस सरबराह की तैनाती का आइन में वाज़िया तरीक़ाकार मौजूद है। तमाम तरीक़ाकार के बावजूद सीनियर सियासतदानों की ओहदे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। बिल्कुल रेहान शेख, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अहम खबर दे रहे हैं कि ISPR ने इमरान खान के फैसलाबाद में कल के जलसे के बयान पर रद्द अमल दिया है। ISPR का कहना है कि इमरान खान ने तौहीन आमीज और गैर जरूरी बयान दिया है। पाक फौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश अफसोसनाक है। पाक फौज में इमरान खान के बयान पर शदीद गमो गुस्सा है। अपडेट दे रहे हैं इस अहम खबर से कि ISPR ने इमरान खान के फैसलाबाद में बयान पर रद्द अमल दिया है। इस पर मजीद भी बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत पराचा, आपसे कुछ देर कबल हमने यही देखा था कि समाअत के दौरान भी जजेस साहबान ने कहा था कि क्या कल के बयान को आपने सुना है, और अब हम देख रहे हैं कि ISPR की जानिब से भी फैसलाबाद में बयान पर रद्द अमल सामने आ गया है। क्या कहेंगे इस पर आप? ये बिल्कुल सही बात है कि जो बयान आया था रात को, उसी वक्त से गम गुस्सा और शदीद किस्म का रद्द अमल तो सब में था। आपने दुरुस्त कहा कि दिन में जब समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी बिल्कुल सही बात की और इमरान खान या PTI के वकील को ये भी याद करवाया कि जो बयान आया था वो इस तरह का बयान एक सियासी क़यादत को देना चाहिए। और अब तो पाक फौज की तरफ से इस बयान पर शदीद गम गुस्सा आया है और इसमें कोई शक नहीं है कि रोजाना की बुनियाद पर आप देखते हैं वज़ीरिस्तान में हो, फॉर्मर फाटा वाले दीगर जो एजेंसीज हैं वहाँ हो, या मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी के खिलाफ भी पाक फौज लड़ रही है। और अभी जो सैलाब और तूफानी बारिशें आई हैं उसमें भी पाक फौज हमें हर जगह मदद करती हुई नजर आ रही है। कल ही एक पुल का जो रेस्टोरेशन हुई, उस पुल की कालाम में पाक फौज ने वक्त से पहले वो मुकम्मल करके दे दिया। तो इसके बरक्स बजाय इसके कि पाक फौज या उसकी क़यादत को सराहा जाए, अप्रिशिएट किया जाए, उनकी कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज किया जाए, यहाँ पर फौज की क़यादत को मुतनाज़ा बनाने की इस हद तक कोशिश की गई कि उनकी हुब्बुल वतनी को भी चैलेंज किया गया। ये इंतहाई किस्म की सूरत हाल है और यकीनन पाक फौज जो एक डिसिप्लिन्ड इदारा है, पाक फौज में एक ही तो सबसे बड़ी खूबी है कि उनके अंदर डिसिप्लिन है। वो एक प्रोफेशनल आर्मी है और प्रोफेशनल आर्मी में क़यादत हो, मिड रैंकिंग लीडरशिप हो या नए लोग आते हैं, नौजवान आते हैं, उनके अंदर एक डिसिप्लिन है। वैसे जिस तरह से कल चैलेंज किया गया चीफ की हैसियत को पाक फौज में, हार्डली जब नए ऑफिसर भर्ती होते हैं तो उनमें कोई एक दो ही हार्डली जाकर लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचते हैं। तो एक बाकायदा स्क्रीनिंग होती है और बाकायदा तौर पर सिलेक्शन होती है और कोई फेवरेटिज्म फौज में नहीं है। यहाँ फौज में आप देखें कि एक आम सिपाही का बेटा भी पाकिस्तान की तारीख में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन चुका है और ये जरूरी नहीं है कि कोई लेफ्टिनेंट जनरल हो और उसका बेटा भी दोबारा, हर लेफ्टिनेंट जनरल का, हर जनरल का बेटा भी ऑफिसर नहीं बनता। तो ये वो मेरिट है जो पाक फौज में बरकरार रहता है और मेरिट की वजह से ही पाक फौज का प्रोफेशनलिज्म बरकरार है। और फिर एक सियासतदान कोई भी हो, फर्ज किया वो खड़ा होकर कह दे कि चीफ मुहिब वतन होगा, चीफ मुहिब वतन ही है, लेट इट बी वेरी क्लियर, कोई भी चीफ हो। मैं तो हमेशा कहता हूं कि कोई भी पाकिस्तान का सियासतदान हो, कोई भी पाकिस्तानी हो, हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देने का किसी को हक हासिल नहीं है, किसी को दूसरे को गद्दार कहने का हक हासिल नहीं है। यही बात आज चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कही थी कि ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं कम अज कम उनसे रेफरेन उनको खत्म किया जाए। और यही पाक फौज की तरफ से ये जो बयान आया है, यकीनन पाक फौज का गुस्सा और उनके अंदर गम जो है वो लॉजिकल है कि अगर देखें क़यादत ही ऑर्डर करती है, मसलन कल को खुदा न खास्ता कहीं जंग हो जाए तो आप फौज की क़यादत के बारे में एक ऐसा इंप्रेशन देना चाह रहे हैं कि जिसको आपका ख्याल है कि शायद रैंक एंड फाइल उसको कबूल नहीं करेंगे, तो फिर डिसिप्लिन कहाँ गया।
डॉक्टर शहबाज गिल इसी वजह से तो उस केस का सामना कर रहे हैं जिसमें उन्होंने रैंक एंड फाइल में तकसीम पैदा करने की कोशिश की और ऊपर से इमरान खान ने ये बयान दे दिया। ऐसा बयान हरगिज नहीं देना चाहिए, ऐसे बयानात से गुरेज किया जाना चाहिए। मैं कहता हूँ कोई भी हो पाकिस्तान के अंदर उसकी हुब्बुल वतनी को शक की निगाह से देखना ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा जुर्म है और इससे इज्तनाब बरपा जाना चाहिए। ये जाए कि पाक फौज के चीफ के हवाले से कोई इस तरह का बयान दिया जाए। लिहाजा ये जो गुस्से का रिफ्लेक्शन आया है पाक फौज के साथ कौम में भी बड़ा गुस्सा है। आम पाकिस्तानी से बात की जाए तो पाक फौज के बारे में वो कोई किसी किस्म का ऐसा तबसरा या ऐसा गैर जरूरी या ऐसा अनकॉल्ड फॉर रिमार्क्स सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और यही पाक फौज ने अपनी तरफ से भी आज बता दिया कि हमें इस तरह के बयानात न सिर्फ नाकाबिल कबूल हैं बल्कि हमारे अंदर इसके खिलाफ रिपल्शन, गुस्सा और गम भी पाया जाता है। बिल्कुल शौकत पराचा, जैसा कि आपने भी इस चीज का जिक्र किया कि कल बीबी नैनी पुल जो है वो 8 घंटे के अंदर जो है वो रिस्टोर किया गया और ये बहुत एक बड़ी काबिश है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस चीज को सराहा कि पाक फौज के साथ जितने भी दीगर इदारे हैं उन्होंने मिलकर ये सारे काम अंजाम दिए हैं। और अगर बात की जाए इंतशार की तो हमने इमरान खान को हमेशा यही देखा है, वो कहते हैं कि मैं इंतशार नहीं फैला रहा। और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि आज की समाअत के दौरान जस्टिस साहबान ने यह भी कहा कि अदालत से वो किसी भी किस्म की रिलीफ की तवक्को ना रखें। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान ये समझ रहे हैं इस तरह के बयानात देने से कि अदालत से वो बच जाएंगे? देखिए, इमरान खान एक दबाव तो डाल रहे हैं, वो हर एक पर दबाव डालते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी हो वो कोई ऐसा फैसला करे जिससे इमरान खान के सियासी मफादात को नुकसान पहुंचता हो तो वो खड़े हो जाते हैं कि अदालतें 11:30 बजे क्यों खुली थी। आपको याद है जब अदालत ने 9 अप्रैल के हवाले से फैसला दिया था तो ये बार बार कह रहे थे, सारे पीटीआई वाले कह रहे थे कि अदालतें 11:30, अदालत तो 24 घंटे खुल सकती है, आइन में कहीं नहीं लिखा गया है। तो इसलिए इमरान खान ये दबाव डाल रहे हैं। और फिर जो बयान दिया जिसकी वजह से उन पर तौहीने अदालत का भी एक केस चल रहा है जो अभी 1 हफ्ते की उनको मोहलत मिली हुई है, वो आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी इस्लामाबाद पर उन्होंने बयान दिया कि हम आपको देख लेंगे। यानी वो इंतजामिया पर दबाव डाल रहे हैं जिसकी आईजी के खिलाफ बयान देने से उन पर थाना मारगला में 780A यानी एंटी टेररिस्ट एक्ट की सेक्शन 7 के तहत पर्चा दर्ज हुआ पड़ा है। फिर जज जेबा साहिबा को जो उन्होंने धमकी आमेज लहजे में बात की वो तौहीन अदालत का केस बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ खसूसी तौर पर जिस तरह के वो बयान देते हैं वहाँ तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस मिला हुआ है। लेकिन इमरान खान को इस चीज की कोई परवाह नहीं है। लगता यही है कि वो सबको दबाव में रखकर और वो समझते हैं कि चूंकि उनके जलसे में लोग आते हैं लिहाजा वो जिससे चाहे टक्कर ले सकते हैं। रियासत के साथ किसी का टकराव नहीं होता, रियासती इदारों के साथ सियासी क़यादत नहीं टकराया करती। रियासती इदारों को तो स्ट्रेंथन किया जाता है, मजबूत किया जाता है। रियासत के खिलाफ किसी मुल्क में हम बहुत कम देखते हैं कि कोई ऐसी सियासी जमात उठकर, और वो भी खास तौर पर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ इस तरह का बयान देना और रैंक्स एंड फाइल्स में तकसीम पैदा करने की कोशिश करना और फिर उस बयान पे डट भी जाना। यानी आज जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं किसी ने नहीं कहा कि कोई गलत फहमी थी या हर कोई पीटीआई की तरफ से उसकी जस्टिफिकेशन दे रहा है कि इस कॉन्टेक्स्ट में था, उस कॉन्टेक्स्ट में था। भाई आप क्या चाहते हैं? आप फौज जैसे इदारे में तकसीम पैदा करके या उनको मलाइन करके आप पाकिस्तान की सलामती को दाव पर लगा रहे हैं। आप पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको डिस्करेज करना चाहते हैं ताकि, और इस तरह जो चैलेंजेस हैं, दहशतगर्दी का अलग चैलेंज है, बैरूनी खतरात का अलग चैलेंज है, सरहदों की सूरत हाल का अलग चैलेंज है, फिर ऊपर से ये आफत आ गई। अभी तो इन लोगों को इल्म ही नहीं है कि ये सैलाब या बारिशों की वजह से पाकिस्तान को कितना बड़ा चैलेंज का सामना है, किस तरह की सूरत हाल को हैंडल करने के लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए, कहां कहां पर रीच आउट हो चुकी है, कहां कहां रीच आउट नहीं हुई। बचता तो सिर्फ फौज का इदारा है, अवाम भी फौज की तरफ देख रही है। आप सैलाब के इलाकों में चला जाएं, पहली बात वो करते हैं कि पाक फौज आए, हमें वो तोहफा दे। जिन इलाकों में मसलन पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही जनूबी पंजाब नहीं जा सके, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब वहां पहुंचे हैं।
स्वात में जनरल कमर जावेद बाजवा पहुंचे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने वहां खड़े होकर कहा कि जो तजावजात दरिया सवात के अंदर बनाई गई थी उनकी तहकीकात होना चाहिए। इस तरह का वो अवामी हकूक और अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तो पाक फौज मैदान में है, ऊपर से फिर उनके खिलाफ एक तरह की कैंपेन चला दी जाए और मसलसल चला दी जाए, ये तो समझ से बालातर है। बिल्कुल। शौकत पराचा, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी ने भी हमें ज्वाइन किया है। तारिक साहब, क्या कहेंगे? ISPR ने इमरान खान के फैसलाबाद में जो उन्होंने बयान दिया उसके रद्द अमल सामने आ चुका है और उनका यही कहना है कि सीनियर क़यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। मजीद क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इमरान खान साहब ने जो कल फैसलाबाद में जलसा किया और उसमें बहुत खुलकर बड़े वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने इस बात का इज़हार कर दिया कि उनका असल मसला क्या है। उनका असल मसला ज़ाहिर है आइंदा चंद महीनों में, आइंदा तकरीबन 1.5-2 माह के अंदर एक जो बहुत अहम तकर्री होने वाली है उसके हवाले से वो दबाव डालना चाह रहे हैं और अदारों पर ये वाज़ेह पे बावर करा रहे हैं। अगर ये तकर्री जो है उसमें उनकी मर्जी या उनकी सलाह मशवरा या उनकी जो है इजाज़त या उनका जो जिसे कहते हैं कि एक तरह का MOC ग्रीन सिग्नल शामिल न हुआ तो फिर उनके बारे में उनकी राय क्या होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो उन्होंने बयान दिए हैं, कल तकरीर की है, ये कैसे मौके पर दिया है। पाकिस्तान की 110 अजला जो है, तकरीबन 110 अजला इस वक्त सैलाब की वजह से पानी में डूबे हुए हैं और 3.5 करोड़ अवाम जो है मुतासर हुए हैं। 10 लाख मवेशी मर चुका है, लोग बेघर हो चुके हैं और पाकिस्तान को 10 अरब से यानी इनिशियली $10 अरब से ज्यादा का दरकार है पाकिस्तान की तमीर नौ के लिए, रिलीफ के लिए, रेस्क्यू के लिए। और पूरी रियासती मशीनरी यानी ज़िली इंतजामिया, पाक फौज, फेडरल गवर्नमेंट मिलकर जो है इस चैलेंज से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसे मौके पर जब जरूरत है कि सारा मुल्क जो है वो कंट्रीब्यूट करे, वो बजाय कंट्रीब्यूट करने के वो तकरीबन डेली जलसा कर रहे हैं। यानी आज उनका जलसा, आज वो सिंध में मौजूद है, हर रोज उनका जलसा होता है, हर रोज कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी छेड़ते हैं जो अगले कई घंटे तक जो है वो जेर बहस रहती है। 11 अप्रैल को जब उनकी हुकूमत खत्म हुई थी अदम एतमाद के नतीजे में, तो सबसे पहले उन्होंने उस अदम एतमाद को जो कि आईनी तरीकाकार था उसको कंट्रोवर्शियल किया और कहा कि ये रजीम चेंज हुई है और रजीम चेंज हुई है अमरीकी साजिश के नतीजे में। और उस अमरीकी साजिश की जो मुबैना अमरीकी साजिश थी, उनकी हुकूमत के खात्मे से 2 दिन पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें जो बयान आया, प्रेस न्यूज आई, वो बिल्कुल वाज़ेह थी कि साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। इसके बाद भी 2 दफा मीटिंग हुई। इसके बाद ISPR जो है मंजर आम पे आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, लेकिन इसके बावजूद वो आज तक अपने इस मौके पर कायम है। पहले वो इन बिटवीन द लाइन्स कहते थे, कभी न्यूट्रल कहते थे, कभी जानवर कहते थे, कभी ये कहते थे कि जी वो फौज जो है, न्यूट्रल जो है, उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था हुकूमत को, अपोजिशन को, PDM को, और उनको मेरी सपोर्ट करनी चाहिए थी। जिन्होंने ये कहना शुरू किया कि मुझे हटा के जिन लोगों को आप लेके आए हैं वो तो बड़े करप्ट लोग हैं और देखिए ये तो बड़ी ज्यादती की बात है, इशारा फिर उनकी तरफ था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने मौकफ में वो तब्दीली लाते रहे। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि 4 लोगों ने बंद कमरे में बैठकर एक साजिश तैयार की है और उस साजिश की मैंने वीडियो तैयार कर ली है और वीडियो तैयार करके मैंने लोगों को बता दिया है कि मेरी जिंदगी जो है वो खतरे में है। कभी वो कहते हैं कि मुझे नायल करने की कोशिश की जा रही है, कभी वो कहते हैं कि मुझे टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है, कभी वो कहते हैं कि मुझे आइंदा इंतखाबात में कराने की बात हो रही है, कभी वो कहते हैं कि इस तरह नवाज शरीफ को नायल किया गया था, डिस्क्वालीफाई किया गया था, मुझे भी डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की जा रही है। अब चलते वो स्टेज पर आ गए हैं सितंबर के महीने में, जबकि 2 महीने बाद एक तकरीर होनी है। तो उन्होंने उसके बारे में इतनी ऐसी अजीबोगरीब गुफ्तगू की कि पाकिस्तान की तारीख में किसी ने की होगी। लेकिन उनका कहना यह है कि जो तकरीर होनी है, अगर वो तकरीर शहबाज शरीफ से या अपोजिशन ने की और तो उसका मतलब ये होगा कि कोई ऐसी शख्सियत सामने आ जाएगी जो कि इग्नोर करेगी उनके बकौल जो मुबैना करप्शन है, करप्शन बचाने के लिए जो PDM की कोशिशें हैं उनके बकौल, तो उसको बचाने के लिए कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह आज तक किसी ने नहीं कहा इस तकरीर के हवाले से, यानी वो कहना ये चाह रहे हैं कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग हैं जो कि लेफ्टिनेंट जनरल ओहदे पर पहुंच गए हैं लेकिन वो किसी के करप्शन को इग्नोर करते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इन लोगों को नाम लेके कहा था, इन लोगों को, यानी उन्होंने बिटवीन द लाइन कहा इन लोगों को करप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फलां मौके पर मैंने कहा कि करप्शन हो रही है, उन्होंने इग्नोर किया। मुसलसल पाकिस्तानी फौज की जो क्यादत है, सीनियर क्यादत है, उसको वो कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, उस पर वो गोश्तबाजी कर रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि उन पर बात की जाए। अब आप खुद सोचें कि जब मुल्क के 3 सूबे, एक सूबा आधा पंजाब और बाकी 3 सूबे जो है किसी न किसी हद तक जो है वो पानी में डूबे हुए हैं, क्या ऐसे मौके पर इलेक्शन की बात करना, इलेक्शन के लिए दबाव डालना,
इलेक्शन की तारीखें मांग रहा है। कल भी उनकी जमात के और आज भी उनकी जमात के लोग कहते हैं कि सारे मसले हल हो जाएंगे, आप इलेक्शन की तारीख दे दें। यानी लोग सड़कों पर पड़े हुए हैं, खेमों में पड़े हुए हैं, रोटी उनके पास खाने के लिए नहीं, और वो कह रहे हैं कि मुझे इलेक्शन की तारीख दे दो। और इलेक्शन की तारीख लेने के लिए वो मुसलसल क्रिटिसाइज कर रहे हैं उस अदारे को जिसके बारे में उनका ख्याल है कि सारे फैसले वहां से होते हैं। अब कोई बंदा उनसे पूछे कि जब आप ये कह रहे हैं कि जो भी नया आर्मी चीफ आएगा उसको इसलिए लाया जाएगा कि वो अग्रेशन केस इग्नोर करे, क्या आर्मी पाक आर्मी जो है वो अग्रेशन के केसों को डील करती है? पाकिस्तान आर्मी का आईनी किरदार जो है दिफा तक महदूद है या सिविलियन गवर्नमेंट की एड तक महदूद है, जिस तरह के आजकल सैलाब के मामले में वो मदद कर रही है। उनको ऐसे कामों में उलझाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे मामले में इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बारे में पाक फौज की लीडरशिप बार बार कह चुकी है कि हमारा फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है, हम आइन के दायरादार के अंदर ही काम करते हैं, हम आइनी अम्ब्रेला के अंदर काम करते हैं। लेकिन वो अपने जो उनके सियासी मकासद हैं उसके लिए दबाव डालने में के मामले में इतना आगे चले जाते हैं कि जहां तक आके दायरे मुतनाज़िर हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह का ये जो बयान आया है बिल्कुल मौके की मुनासिबत से है, और पाकिस्तान के अवाम में और सिविल सोसाइटी में, दानिशवरों में मेरा ख्याल है उससे भी ज्यादा गमो गुस्सा पाया जाता है। ठीक है, तारिक चौधरी आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। शौकत पराचा आपसे जानना चाहेंगे, हमने यही देखा है कि जब से अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई है उसके बाद एक तवातर के साथ ये जो जितने भी तकरीरें हैं इमरान खान की मुस्तकिल हमने देखा है कि इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान की जो तकरीर है उस पर पाबंदी लगाई गई पैमरा की जानिब से, फिर वो पाबंदी भी हट गई, और फिर भी इमरान खान की जो ये तवातर के साथ इल्जामात और इस तरह जो इदारों पर उंगलियां उठा रही थी वो नहीं रुकी हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? इमरान खान के ज़हन में पता नहीं ये क्यों नहीं आता कि जब वो इक़्तिदार में आए थे तो वो भी किसी के कंधों पे बैठ के आए थे, कोई सीढ़ी इस्तेमाल हुई थी। यानी इमरान खान को पता ना हो, पीटीआई वालों को पता ना हो, बाकी पूरे मुल्क को पता है। अब जब उनकी हुकूमत गई है तो वो समझते हैं कि उनकी हुकूमत कोई जेन्युइन तरीके से नहीं गई, बल्कि वो जो साजिशी थ्योरी की बात करते हैं, पहले वो बैरूनी साजिश की बात करते थे, अब वो कहते हैं कि नहीं, जो यहाँ जिन्होंने उस साजिश को रोका नहीं है वो जिम्मेदार हैं। और यकीनन वो बार बार अब तो वाज़ेह हो गया कि वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। वो इक़्तिदार से जाना, यानी वो ये नहीं समझते कि जो उनके साथ इत्तेहादी बनाए गए थे वो शायद उनके नेचुरल एलाइज नहीं थे, वो उनके फितरी इत्तेहादी नहीं थे। मसलन मैं MKM की बात कर रहा हूँ। काफ लीग के हवाले से वो खुद कहते थे परवेज इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, और काफ लीग पंजाब में उनके साथ बिठाई गई थी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाले भी उनके साथ बिठाए गए थे। जब वो बिठाए गए थे तो उस वक्त इमरान खान को ये नागवार नहीं गुजरा था, उस वक्त वो बड़े खुश थे। इमरान खान के साथ जब आज़ाद लोग मिलाए जाते थे तो इमरान खान को तो पता ही नहीं होता था कि कौन कल हमारी पार्टी में शामिल हो रहा है। उस वक्त वो पसंद करते रहे, लेकिन अब चूंकि जो गैर फितरी एलाइज थे, जैसे ही उनको खुली छुट्टी मिली वो तो उन्होंने हट जाना था। वो तो पीटीआई की न सियासत से मुत्तफिक हैं, न इनकी सोच से न मुत्तफिक। अभी परसों मोने सिलाई गुजरात वाले जलसे में कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब आप इन लोगों को तमीज सिखाएं, ये घर में बैठकर अपने बड़ों के साथ किस तरह की बात किया करें। मैं नहीं कह रहा, ये परवेज इलाही का बेटा मोना सिलाई खड़ा होकर कह रहा था, ये तो उस इत्तेहाद का फितरी होना था। लिहाजा आप इमरान खान समझते हैं कि जो सारा कुछ हुआ, उनकी हुकूमत गई, इमरान खान को एक मौका मिला था 4 साल का, वो हुकूमत में परफॉर्म नहीं कर सके, इस वजह से उनको हटना पड़ा या हटाना पड़ा, इत्तेहादी चले गए। अब वो बार बार बजाय इसके कि अपनी नाकामियां, अपनी कमजोरियों को रिव्यू करें, वो मलबा दूसरों पे डाल रहे हैं, वो तकरीरों में अपने आप को रेलेवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो धमकियां देते हैं, वो दबाव डालते हैं, वो ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं कि मैं ठीक है। शौकत पराचा आपसे इस पर मजीद भी बात करेंगे।